Hello class 6 students and welcoming you all back to your new chapter. So, not welcome back, but welcome back to maths again with me. So, this will be your chapter number 2 of the chapter name is Lines and Angles of Mathematics. Okay, um, like in the last chapter, we dealt with patterns, so it was patterns in mathematics, and in this, we'll be dealing with lines and angles, like not only angles and lines, but also line segment point, rays, and angles as well. So majorly angles will also do and majorly lines will also do. That's why the team comprises of these two. Plus, this will be your episode number one. This will be like a pilot episode or the start episode of this one of your this chapter as a whole. Okay. Plus the last chapter which we did that was of patterns in mathematics. उसमें हमारे 6 episodes बने थे 6 videos बने थे उसके and for this one it won't be 6, it will be more than 6, which I think so because there are more 11 topics and some are very short like half page and some are like more than 2-3 pages as well, which also comprises of questions between them. So we obviously will take some more time to solve those questions, so it will be maybe more than 7 8, maybe 9, maybe 10, I don't know because I haven't made all videos till now, but it will be surely more. So that's why the slot has been changed. Now from 8 p.m., like earlier slot, the patterns in mathematics has 6 videos, and it was given the slot of 8 p.m. and also 3 days a week. But now we will be doing a 7 p.m. slot, and it will be a daily thing. So it will be like from 13th June. This will be the first episode. So on 13th June, you will be watching this, and after 13th June every day you will be having this till it's complete. So every day will meet, right? So it is what it is. So now let's get into it. In this chapter we will explore some of the most basic ideas of geometry. As I said, that includes points, lines, rays, line segments, and angles. So these ideas form the building block of plane geometry and will also help us understand more advanced topics in geometry such as construction and analysis of different shapes. Okay, so this is what it is. अब हम इसको पढ़ते हैं तो जैसे ज्योमेट्री जो होती है ना, ज्योमेट्री तो इन सब चीज़ों से ही होती है। ज्योमेट्री जो बनती है एंगल से, कितना एंगल है, कितनी लाइन, कितनी वो है, तो उसके जो प्लेन ज्योमेट्री यानी कि एक प्लेन में जो हम ज्योमेट्री करते हैं लाइक इन अ प्लेन फिगर एज इन नॉट लाइक अ 3D और समथिंग बट इन अ प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन, तो उसमें ये सारी आपकी बहुत हेल्प करती है। आगे अगर हम 3D में करेंगे तो उसमें भी हेल्प करेगी, बट एज अ जनरल आइडिया फॉर यू ऑल अभी के लिए थ्री प्लेन ज्योमेट्री में हेल्प करती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो एडवांस टॉपिक्स आपको जो ज्योमेट्री में होते हैं उसमें भी आगे आगे आपको हेल्प करेगी और आप आगे पढ़ेंगे भी मेरे हिसाब से। आज हम इसमें 3 टॉपिक्स ही करेंगे। आज मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू आने वाले वीडियो लेक्चर्स। फर्स्ट इज पॉइंट। ये पॉइंट बनाने का तरीका बता रखा है। पॉइंट इज नथिंग अ डॉट और पॉइंट। लेट्स रीड दिस। Mark a dot on the paper with the sharp tip of a pencil. The sharper the tip, the thinner will be the dot. The tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, breadth, or height. Some model for a points are given below. तो जो पॉइंट है वो आपको एकदम प्रिसाइज लोकेशन बताता है, उसका मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत ही डॉट होता है, टाइनी डॉट होता है, और जितना छोटा डॉट होगा उतनी प्रिसाइज आपको उसकी लोकेशन यानी कि उतनी एग्जैक्ट आपको उसकी लोकेशन मिलेगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज बिकॉज इसमें जो आपकी चीज़ें हैं it works like that only. Other than that, you also have the idea of that कि मैंने मुझे बताया कि it has to be precise, it should be sharp, so it should get an exact idea on location. As it is a point, only a dot, so it won't have any length, right? No breadth, no height, no dimensions such of like this. And some of the models जो इस points के दे रखे हैं, like it is the tip of a compass. Compass का tip होता है the sharp end of a pencil and the pointed end of the pencil, यानी कि जो sharp end जैसे कि कोई पेंसिल का sharp end जो होता है ये वाला वो, ठीक है। and this is not a pencil, I just said pencil, this is needle, है ना, maybe knitting needle जिससे आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं। If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter, such as Z, P, and T. These points are read as point Z, point P, and point T. Of course, the dots represent precise location and must be imagined to be invisibly thin. तो जो पॉइंट्स हैं आपको बहुत ही पतले होने चाहिए। जैसे अगर हमने तीन पॉइंट्स मार्क करने हैं एक पीस ऑफ पेपर में,
सो हम उसको ऐसे ही कर सकते हैं, हम ऐसे 3 लेटर दे सकते हैं कोई भी। आई हैव टेकन ZTP, यू कैन टेक ABC, यू कैन टेक XYZ, एनीथिंग। एंड आप उसको बुलाएंगे कैसे, लाइक हाउ विल यू से इट, you will say point Z, point T, point P, like this. So these are the point Z, this is point P, this is point T, so these three are the points. So you can do it. The second chapter I'm saying CV. The second topic of this chapter is line segment. पहले के तीन थोड़े ठीक ही हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे तो नहीं, लेकिन रे फोर्थ है। तो अभी हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट और निकल लाइन है, लेट्स या वही करेंगे। तो फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट, डू यू सी अ क्रीज, मतलब कि जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं और फिर उसको अनफोल्ड करते हैं ना, पेपर को फोल्ड करो फिर खोलो, तो वहाँ पे एक लाइन से बन के आ जाती है ना। तो ये हमें एक आइडिया देती है एक लाइन सेगमेंट कैसी होती है। इसके दो एंड होते हैं, ए एंड बी, वही यहाँ पे लिखा है। सो मार्क एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट, ट्राई टू कनेक्ट ए एंड बी बाय वेरियस रूट्स, जैसे यहाँ पर से हमने किया है ना, यहाँ पे से एक सिंपल रूट किया। और वहीं अगर मैं ऐसे दो, ऐसा ए पॉइंट एक बी पॉइंट, एक सिंपल रूट भी जाएगा, एक मैंने कर्व रूट ले लिया, एक मैंने थोड़ा ऐसे 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 ले लिया, फिर थोड़ा सीधा थोड़ा टेढ़ा, और एक मैंने ऐसे कहीं पे भी मैं अपनी पेंसिल जहाँ जहाँ मेरी जाए पेंसिल वहाँ पे मैं लेके चला गया। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से जॉइनिंग कर सकते हो दो पॉइंट्स की ए टू बी में, राइट। बट जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो चीज़ होती है आपकी लाइन सेगमेंट, वो यहाँ पे लिखी है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी इज द पॉइंट ए टू बी, जो ये है आपका, ये पेंसिल दिख रही होगी ना आपको मेरी, ये मैंने सही स्ट्रेट लाइन नहीं खींची, ये वाली जो इसके बीच में है ना, ये वाली लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट। ठीक है, इट हैज टू एंड्स, एंड the shortest distance between those two ends is called the line segment, and it is denoted by either a b dash, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए, या फिर बी ए के ऊपर डैश। ए बी मतलब ए बी लाइन सेगमेंट, या बी ए मतलब बी ए लाइन सेगमेंट, ऐसे। द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट, यानी कि इनको एंड पॉइंट कहते हैं। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि ए स्टार्ट पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, या बी स्टार्ट है एंड, नहीं, दोनों एंड पॉइंट है, दोनों में ही ला की लाइन यहाँ से भी शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से भी खत्म होकर यहीं पे वो हो रही है। सो दोनों में खत्म हो रही है एंड पॉइंट से, दैट इज वाई दे कॉल्ड एंड पॉइंट। So for the line segment of A and B both are end points, right? आगे हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ, which is your line. Okay. So here it is. Imagine that the line segment from A to B is extended beyond, मतलब कि जो A से B की लाइन है हमने उसको extend कर दिया। Extend in term of कि अगर जो इतनी लाइन हमने, जैसे इसमें कोई फिक्स लाइन थी ना कि लेट्स से इतने इससे लेके इतने डिस्टेंस तक मैंने बनाई, बट आई सेड ना, आई से कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक इट मोर फर्दर, इसको और आगे यहाँ तक बियॉन्ड वॉट आई हैव मेक इट। सो ए इन वन डायरेक्शन है ना, ए हमने एक डायरेक्शन में कर दिया, बी हमने एक डायरेक्शन में कर दिया, वी हो गया, बी बी हमने एक डायरेक्शन में कर दिया, है ना, विदाउट एनी एंड हमने ये देखा। तो ये मॉडल होता है फॉर अ लाइन, ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, आई जस्ट मेड इट अगेन। सो डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो, हम कंप्लीट पिक्चर नहीं बना सकते लाइन की, बिकॉज लाइन इज एंडलेस, क्योंकि हमने उसको एक लाइन सेगमेंट जो कि एक मेजर चीज़ होती है ना, एक इधर से लेकर के दूसरे एंड तक की, हमने उसको उसमें नहीं नाप तोल रखा है। हमने वी हैव ऑलरेडी सेड दैट इट इज़ बियॉन्ड दैट लाइन सेगमेंट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इसको नाप नहीं सकते। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैन यू ड्रॉ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन, सो वी हैव रेड नो। नाउ इट इज़ आस्किंग अस व्हाई, क्यों नहीं कर सकते हम। तो अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी रिटन एज ए बी, ये तो जैसे हम ए बी, आई एम सो सॉरी, बी थोड़ा ढंग का नहीं बना, और ऐसे अगर हम लाइन सेगमेंट दिखाते हैं ना, तो वैसे ही हम ए और बी की जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसका ऐसे दिखाते हैं, विच इज़ योर लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एज अ लाइन, रिप्रेजेंट करते हैं हम एज एन इसको। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये फॉर एवर चलता रहता है, इन बोथ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए ऑल्सो एंड इन डायरेक्शन ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, अदर देन दैट, what else is there, other than that the else thing is
कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो लाइन की हैं, इसको हम कोई भी लेटर से भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इससे तो डोनेट कर ही रहे हैं, ए बी उससे, बट हम उसको एज ए लेटर इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, एल या एम या कोई ऐसे उससे भी यूज़ कर सकते हैं। दैट लाइन एल लाइन एम, ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट डिटरमाइन ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू बोथ ऑफ देम। तो कोई भी हम ऐसे लाइन देख सकते हैं जो कि दो पॉइंट के थ्रू पास करती है। सो दिस वाज ओनली मच इस टॉपिक में, इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं करेंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट करा है। तो पॉइंट इज जस्ट अ पॉइंट, जो कि एक फाइनाइट चीज़ है, जो कि एक प्रिसाइज वो है, उससे आगे बढ़ेगा नहीं वो, राइट। प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है, उसकी कोई हाइट विड्थ ब्रेथ नहीं है, बस एक डॉट है वो। अदर देन दैट लाइन सेगमेंट जो होता है, दो पॉइंट, दो एंड पॉइंट के बीच में लाइन बनती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लेट्स से ए एंड बी एंड पॉइंट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो है ए एंड बी के बीच में, वो है लाइन सेगमेंट। और जो लाइन होती है, दैट इज अ लाइन का जो लाइन सेगमेंट जो होती है, उसके जो दोनों डायरेक्शन में इट इज़ बियॉन्ड दैट, तो इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर पाते। और लाइन सेगमेंट को हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी हाँ, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, and we'll start with Ray in our next episode. So till then, I'll meet you all tomorrow in our next episode. क्योंकि हर दिन वीडियो आएगी ही, तो टुमारो यानी कि अगले दिन ही जब वीडियो आएगी, तो I'll meet you all. Till then, bye bye, and do revise. You have, if you haven't seen the last chapter, so do see and do revise today's topic. There is not much, so it's like you can revise easily. So we'll meet you again tomorrow. Till then, bye bye, and thank you.